دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ آج کل جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کو بہت کچھ سننے کو جاننے کو ملتا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ جو ٹرینڈز چلتے ہیں، اور خاص طور پہ جو فیشزم رہی ہے، اور اگین خاص طور پہ عمران خان کے بارے میں جو لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے، جن کو کبھی پہلے پہچان نہیں تھی ہو از عمران خان، اس کے سوا کہ وہ ایک کرکٹر ہے اور بہت کامیاب کرکٹر ہے، لیکن جو ہمارا ماحول ہے کہ دوسرے کو بے جا تنقید کا نشانہ بنانا ہے، ہر بات پر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ مین میڈیا پر کبھی بھی پرسنلی میں نے اپریشیٹ نہیں کیا کہ جس طرح سے ایک ایشو کو لے کر وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور برین واشنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ Anyway, that's a subject for another podcast۔ سلسلہ جو عمران خان کی کتاب کا چلایا ہوا ہے ہم نے، میں اور میرا پاکستان، اس کا سب سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ جنہوں نے بک نہیں پڑھی ان کو عمران خان کی کتاب سے وہ معلومات حاصل ہوں جو ان کو نہیں پتا، جو وہ جاننا چاہتے ہیں، جو کہ عمران خان نے اپنے خیال کے مطابق اس کو پین سے پیپر پر اتارا ہے۔ یہ جو باب ہے، اس کا عنوان جو چل رہا ہے، یہ وہی باب ہے، شادی خانہ آبادی۔ اور ابھی حال ہی میں جناب ہارون رشید نے ایک کالم لکھا ہے جس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو اس کتاب میں ہم پچھلے باب میں بتا چکے ہیں، بہت سے ڈیفرنٹ آہستہ آہستہ ذکر آتا ہے۔ عمران خان کی کتاب ہے میں اور میرا پاکستان، اور اس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے سلمان قاسم اور پاکستان کے سب نوجوانوں کے نام، اور پھر اس کا جو دیباچہ ہے وہ جیسے لکھا ہے، نا تمام ہے اس کا نام، ہارون رشید صاحب نے کپتان کی کہانی، اور اس کو غالباً ایڈٹ بھی انہوں نے کیا ہے، مدد کی تھی اس کے لیے۔ چلتے ہیں کہ آگے کیا لکھتے ہیں وہ شادی خانہ آبادی کے چیپٹر میں۔ میری اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں نے اور بڑی تعداد میں سیاسی تجزیہ کاروں نے نواز شریف کے بھاری مینڈیٹ کی بنیاد پر پیشین گوئی کر دی تھی کہ اب آنے والے 10 برس تک نواز حکومت کو ہلانا کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ یہاں پر آپ کو بتانا ضروری ہوگا کہ اس کتاب کا جو پہلا ایڈیشن چھپا تھا وہ 2012 میں تھا، اگر آپ کو 2012 کے حالات یاد ہوں۔ میری جماعت کو ہر ایک نے فراموش کر دیا۔ نواز شریف 2/3 اکثریت کے بعد زوم میں اس قدر مبتلا تھے کہ اگلے 20 سال تک حکومت کرنے کی منصوبہ بندی فرما رہے تھے۔ پرانی عادتیں ختم نہیں ہوتی نا۔ ان کے ایک مفکر نے تو ویژن 2010 کے نام سے ایک خیرہ کن منصوبہ بھی قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ بالکل مختلف زاویہ نظر سے میں سوچ رہا تھا، اور اللہ کے کرم سے میرے نقطۂ نظر کو درست ثابت ہونا تھا۔ دائمی رجائیت کے زیر اثر میں مختلف معاملات سے نمٹنے میں جت گیا۔ سب سے پہلے میں ہسپتال کی طرف متوجہ ہوا۔ لیڈی ڈایانا کے دورے کے بعد ہم نے ایک مہم کا آغاز کیا، اس کے تحت ایک کے بعد ایک رائے عامہ ہموار کرنے والی شخصیات، صحافیوں، کالم نگاروں اور اخبارات کے ایڈیٹروں کو ہسپتال کا دورہ کرنے کی دعوت دی جانے لگی۔ 1998 کے آغاز تک ہسپتال کی مالی حالت سدھر گئی۔ 1999 تک ہسپتال کی احتیاط الیکشن سے پہلے والی حالت میں جا پہنچے۔ اسی دوران میری اپنی مالی حالت بھی سنبھلنے لگی۔ میں نے کرکٹ کے حوالے سے لکھنے اور مبصر کے طور پر خدمات انجام دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ نہ صرف میرے ذاتی اخراجات بلکہ پارٹی کے مصارف کا بندوبست بھی ہونے لگا۔ 1999 میں بوتھم اور لیم نے اپنی اپیل واپس لے لی، چنانچہ اضافی رقم کی مجھے ضرورت نہ رہی۔ معاملات کو مزید بہتر انداز میں منظم کر کے مجھے اپنے خاندان کی خوشیوں میں شریک ہونے کا زیادہ وقت ملنے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آ کر میں نے جو سب سے بڑی قربانی دی وہ یہی تھی کہ جو وقت میں اپنے خاندان کے ساتھ گزارنا چاہتا وہ سیاست کی نظر ہو جاتا۔ اپریل 1999 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے بیٹے قاسم سے نوازا۔ سیاسی میدان میں درپیش مشکلات کم نہ ہوئی۔ میں نے 1 سال کے اندر اندر پارٹی کے قرضے اتار دیے، مگر عطیات میں اضافہ ناممکن ہو گیا۔ پارٹی عہدہ دوران کے پاس مالی وسائل نہ تھے کہ وہ کل وقتی سیاسی کارکن کے طور پر کام کرتے، پھر ہاری ہوئی جماعت کی مدد کون کرتا۔ ملک کی معاشی حالت بگڑ چکی تھی۔ ہمارے بہت سے عہدہ داران اب دیوالیہ تھے، باقیوں کو اتنا ہی کمانے کے لیے دگنا کام کرنا پڑتا۔ میرا زیادہ تر وقت پارٹی کے جھگڑے نمٹانے میں صرف ہو جاتا۔ اکثر کسی مخصوص علاقے کے کارکن اپنے عہدہ دار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے کہ وہ پارٹی کو مناسب وقت نہیں دے رہا۔ اگر پارٹی کا ضلعی سربراہ کام نہ کرے تو
पूरा ज़िला उज़्व मुअत्तल बन के रह जाता। हम जागीरदारों और पेशावर सियासतदानों के खिलाफ जिद्दोजहद में मसरूफ़ थे। उनके तो आबाई इंतखाबी हल्के हुआ करते हैं, एक मुस्तकिल तंजीमी ढांचा मुसलसल बरूए कार रहता है। इतने वसाइल उनके पास होते हैं कि वो कुल वक्ती सियासत कर सकें। जमात के लिए क़यादत की तलाश का दर्द सर भी दरपेश था। ये पाकिस्तानी सियासत का एक आम मसला है। अपने क्रिकेट करियर के दौरान में हमेशा इस बात पर हैरान हुआ करता कि आखिर पाकिस्तानी टीम में इतनी ज़्यादा साजिशें क्यों रहती हैं। इंग्लैंड में कई फर्स्ट क्लास टीमों की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, जिनमें ऑक्सफोर्ड, रोचेस्टर और ससेक्स शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के शेफील्ड शील्ड मुकाबलों में न्यू साउथ वेल्स की नुमाइंदगी भी करता रहा। इसके बावजूद के बाज़ टीमों की क़यादत नाअहल कप्तानों के हाथ में होती थी। मैंने कभी भी खिलाड़ियों को कप्तान के खिलाफ साजिश करते न पाया। इधर पाकिस्तानी टीम में हमेशा धड़ेबंदी हुआ करती। शिकस्त की सूरत में खिलाड़ी कप्तान को नाकाम बनाने पर तुल जाते। 1982 में जब मुझे टीम का कप्तान बनाया गया तो सूरत हाल ऐसी ही थी। पूरी टीम ने मुसल्लत साबिक कप्तान के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया था। 1992 में मेरी रिटायरमेंट के बाद बार बार कप्तान तब्दील हुए। 1992 से 2010 तक के दौरान पाकिस्तान के करीब 30 कप्तान बदले होंगे। इसी अरसे में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 4 कप्तान आए। यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी होगा कि ये एक बात सच है, क्योंकि यहाँ ओवरसीज रहते हुए हमें भी पता होता था कि लाहौर का ग्रुप अलहदा बना हुआ है, क्रिकेट टीम में कराची का अलहदा बना हुआ है। पाकिस्तान याद नहीं होता, अपने शहर याद होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में सबसे बेहतरीन बात यह है कि उनमें कंपटीशन इतना है, वो आपस में कोई इस किस्म का बॉक्स जो है अगर हो भी तो वो अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट में लेकर नहीं आते और एक इकट्ठे होकर खेलते हैं। ऐसा इकट्ठा अपने लोगों को करना बहुत मुश्किल है, और जो पार्टी का लिखा है वो भी बिल्कुल तजर्बे के हिसाब से दुरुस्त है, क्योंकि हर कोई जो है वो अपने आप को समझता है कि अगर ये काम कर सकता है तो मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सोचा कि थोड़ा सा गवाही दे दूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप सब भी जानते ही होंगे। दूर क्या जाना, अपने पाकिस्तान का ही देख लीजिए, कितने प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं और मुकाबलतन इंडिया में कितने चेंज हुए हैं। आते हैं किताब की तरफ। अस्पताल के लिए अहतियात जमा करने की खातिर मुझे बैरूनी ममालिक में कायम कमेटियों के अंदर कशमकश का सामना भी रहा। बहुत तहकीक के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कायदाना सलाहियतों के फुकदान का एक सबब हमारा तालीमी निज़ाम भी है। हमारे सभी टेस्ट क्रिकेटर्स और सियासी कारकुन सरकारी स्कूलों से तालीम याफ्ता हैं। इंतहाई अफसोसनाक हकीकत यह है कि गुज़श्ता 40 बरस के दौरान हमारा तालीमी निज़ाम ड्रामाई अंदाज में बदतरीन इन्हतात का शिकार हुआ। हमारे अक्सर स्कूलों में तालिब इल्मों की कायदाना सलाहियतें उजागर करने का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं। जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने का फ़न सिखाने वाला कोई नहीं। एचिसन कॉलेज का मामला यकसर मुख्तलिफ है, जहाँ प्रीफेक्ट्स, हेड बॉयज, टीम कैप्टन्स पर मुश्तमिल पूरा निज़ाम मौजूद है। सबसे बढ़कर फौजी तरबियत का इंतज़ाम, ताकि हम एक टीम की सूरत में काम करना सीख लें और हम में वो औसाफ पैदा हो एक लीडर को हुक्म मनवाने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। बदकिस्मती से निजी स्कूलों की अक्सरियत और तमाम के तमाम सरकारी स्कूलों में खेलों की सहूलतें मौजूद नहीं। वहाँ गैर नसाबी सरगर्मियों का बंदोबस्त भी नहीं। स्कूलों के तलबा को ये सीखने का मौका ही नहीं मिलता कि इख्तियार के साथ एहसास ज़िम्मेदारी भी लाजमी और बुनियादी शर्त है। मज़ीद ये कि ये कोई अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो अपने मातहतों की तरफ से मिलने वाली इज्जत से महरूम हो जाया करता है। मौजूद अफराद की तलाश में बेतहाशा सफ़र और इससे जन्म लेने वाली बेजारी के बावजूद मुल्क के तूलो अर्ज में घूमते फिरते रहने के दौरान मुझे बहुत कुछ जान लेने का मौका मिला। बाज़ इंकशाफात हैरान कुन थे। उन लोगों ने मुझे खास तौर पर बेहद मुतासर किया जिनके पास वसाइल न होने के बराबर हैं। वो महज अपने जुनून के बल पर पाकिस्तान के लिए हर खिदमत अंजाम देने पर तुले रहते हैं, जितनी भी सख्त हो, जितना भी बस चले। अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मुझे अपने लोगों का शकूक से लबरेज रवैया था। बार बार माजी में लोगों को सबज बाग दिखाए गए, धोखा दिया गया, चुनाचे वो हर एक को शक की नज़र से देखते हैं। अवाम इस बात पर कैसे यकीन करते कि मैं माजी में इनकलाब का वादा करने वाले
सियासतदानों से मुख्तलिफ हूँ। इलेक्शन में नाकामी के बाद 4 साल के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बड़ी तादाद में लोगों से मिलना मिलाना बजाते खुद आला तरबियत की बेहतरीन अक़साम में से एक है। शायद मैं अब इस काबिल हो चुका हूँ कि लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं किसी कदर सरत के साथ अपने मुलाकाती के ज़हनी मैलान का अंदाज़ा लगाने के काबिल हुआ। नवाज शरीफ ने सियासत को इस कदर गंदा कर दिया कि लोगों की अक्सरियत सियासत को पैसा कमाने का जरिया समझने लगी है। ऐसे लोगों से बात करना मेरे लिए सियासत का सबसे ज़्यादा तकलीफ दे सबक होता है। मैंने अपने अंदर वक्त ज़ाया किए बगैर अहम तरीन नुक्ते पर पहुँचने की सलाहियत को भी जन्म दिया। सबसे अहम अव्वलीन तरजीह का अदराक, अहम और मामूली बात में तमीज़ करने की सलाहियत ने मुझे अपना वक्त बेहतर तौर तकसीम करने के काबिल बनाया। अपने तबाहकुन इंतखाबी नुकसान और पार्टी के अंदर उभरने वाले एक के बाद एक बहरान से निमटने के बाद मुझे अपने लोगों की कदर व कीमत का दुरुस्त अंदाजा हुआ। पता चला कि पार्टी के किन अरकान पर इन्हिसार करना है। क्रिकेट ने मुझे ये सिखाया कि खिलाड़ी की सलाहियत का पता उस वक्त चलता है जब उसे शदीद दबाव में खेलना पड़े। मैं पेशीन गोई कर चुका था कि नवाज शरीफ ज्यादा देर इक़्तिदार में न रह पाएगा। हुकूमत की मुआशी बदइंतजामी और रियासती अदारों की बढ़ती हुई बेतौकीरी के बायस शरीफ मुखालिफ जज्बात में शिद्दत आने लगी। सितंबर 1999 में तमाम अपोजिशन पार्टियों ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के नाम से एक इत्तेहाद कायम कर लिया, जिसका एक नकाती एजेंडा नवाज शरीफ से निजात की मुहिम चलाना था। पार्लियामेंट में अपनी फैसला कुन अक्सरियत के बल पर उसी बरस नवाज शरीफ ने 15वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिश की। अगर ये मान ली जाती तो वो अमीरुल मोमिनीन बन जाता, आमिराना अख्तियारात भी उसे मिल जाते और वो ज्यादा सख्त गिरी और मनमानी के साथ फैसले फरमाया करता। 13वीं तरमीम में एक शिक शामिल थी कि पार्टी सरबराह की हुक्मअदूली पर पार्लियामेंट का मेंबर अपनी रुकनियत से महरूम हो जाएगा। नवाज शरीफ पहले ही मुगल बादशाह की तरह था। 15वीं तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम के बेलुगाम अख्तियारात हर किस्म की रोक टोक से मावरा हो जाते। खतरा था कि मार्च 2000 में सेनेट इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ को मतलूब अक्सरियत मिल जाएगी और वो 15वीं तरमीम को कानूनी शक्ल देने में कामयाब हो जाएगा। हजरत नवाज शरीफ और इनकी पार्टी ने पहले भी एक कारनामा अंजाम दिया जो हमारी तारीख के सबसे ज्यादा जिल्लत आमेज वाकयात में से एक है। 1997 में उनके पार्टी लीडरों ने अपने कारकुनों को साथ लेकर सुप्रीम कोर्ट पर हल्ला बोल दिया। चीफ जस्टिस ने जुर्रत से काम लेकर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया था। अब अदालत से उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। GDA ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले। साफ जाहिर था कि रायामा नवाज शरीफ के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के आम आदमी को 15वीं तरमीम से कोई सरोकार न था। मुआशी हालात दिगरगूं थे और आम लोग एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई, खास तौर पर बिजली, पानी और गैस के बिलों में इजाफे की चक्की में पिस रहे थे। कुछ भी तो नहीं बदला इतने सालों में। अवाम का जीना दोभर हो गया। आकबत नाअंदेशी के नतीजे में किए जाने वाले तबाहकुन कारगिल ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के साथ बढ़ते हुए तनाव ने नवाज शरीफ को मजीद कमजोर कर दिया। मई 1999 में भारत को पता चला कि पाक फौज और कश्मीरी हुर्रियत पसंद मकबूजा कश्मीर में कारगिल की चोटियों पर विराजमान है। सितम ज़रीफी देखिए कि ये वाकया भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के तारीखी दौरा लाहौर के 3 माह बाद पेश आया। इस सिलसिले को यहाँ पर रोकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि इमरान खान को सियासत का नहीं पता, वो किताबें इमरान खान की लिखी हुई जो हैं उनको पढ़कर देख लें। कुछ थोड़ा सा अंदाजा होगा कि मुशाहिदा कैसा जबरदस्त रहा। 25-26 साल जद्दोजहद की तो निज़ाम को बहुत अंदर से देखा। इमरान खान की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान का इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा जनाब हारून रशीद साहब ने किया हुआ है। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए अगली बातचीत इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में सुनवाएंगे। और हमारी ये पॉडकास्ट आपको तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। आइंदा के लिए इजाज़त। ये वक्त है अपने हकूक़ के लिए खुद उठने का, जद्दोजहद करने का। प्लेट में रखकर कभी कोई किसी को आज़ादी नहीं देता। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.